A very good morning to all of you students. Today we are going to revise chapter 7. Name is Glimpses of India. This chapter, Glimpses of India, consists of three parts. First, A Baker from Goa, written by Lucio Rodriguez. Second one is Korg, written by Lokesh Abrol. And third one is Tea from Assam, written by Arab Kumar Dutt. So students, today we are going to start part 3rd, Tea from Assam, which is written by Arab Kumar Dutt. The third part is about the tea plantations in Assam. In the third part, we have to discuss about the characters. So, first is Razveer. Razveer is a youngster from Delhi. He is a person who is always excited to learn about new things. Next is Pranjal. Pranjal is a friend and classmate of Razveer. He belongs to Assam. Now student, we are going to discuss the summary of this chapter, means part 3rd, Tea from Assam. First point is Razveer's visit to Assam. Razveer and Pranjal are travelling to Assam by train as Pranjal has invited Razveer to visit his home during the summer vacation. Razveer is very excited to see the beautiful scenery of greenery and tea plantations outside. Razveer tells Pranjal that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world. जो राजवीर है वो विज़िट करता है असम की, जबकि जो राजवीर है वो रहने वाला कहाँ का है, दिल्ली का, और वो प्रांजल के साथ में जाता है विज़िट करने के लिए असम की. राजवीर एंड प्रांजल आर ट्रैवलिंग टू असम बाय ट्रेन. वो दोनों ट्रैवलिंग करते हैं असम के लिए बाय ट्रेन के द्वारा. एज प्रांजल हैज़ इन्वाइटेड राजवीर, क्योंकि जो प्रांजल है वो इन्वाइट करता है राजवीर को टू विज़िट हिज होम, कि वो विज़िट करे उसके घर की ड्यूरिंग द समर वेकेशन के दौरान. राजवीर इज़ वेरी एक्साइटेड. वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है यह देखते हुए जो ब्यूटीफुल जो सीनरी होती है ग्रीनरी की उसे, और जो टी प्लांटेशन है बाहर की तरफ, उन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है. राजवीर टेल्स प्रांजल, राजवीर बताता है प्रांजल को दैट ओवर 80 करोड़ कप्स, कि 80 करोड़ जो कप्स हैं ऑफ टी के वो डेली पिए जाते हैं पूरे वर्ल्ड के. नेक्स्ट इज द ब्यूटीफुल टी गार्डन्स. Razveer looks at the scenery outside and is mesmerized by its beauty. The view from the train was also panoramic. Panoramic means a wide view. There was greenery outside. The soft green paddy fields gave way to tea bushes. Tea bushes spread as far as the eye could see. राजवीर लुक्स एट द सीनरी. वो सीनरी देखता है बाहर की. एंड इज मेसमेराइज मीन्स अट्रैक्ट होता है वो इस ब्यूटी के द्वारा. द व्यू फ्रॉम द ट्रेन, जो दृश्य है ट्रेन से बाहर की तरफ का जो दृश्य है वो बहुत अच्छा लगता है उसे. देयर वॉज ग्रीनरी आउटसाइड, क्योंकि बाहर की तरफ सभी जगह क्या है, ग्रीनरी. दी सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स, जो सॉफ्ट ग्रीन जो पैडी फील्ड्स हैं, गेव वे टू टी बुशेज, अब वो हट गए हैं, अब उनका स्थान किन्होंने ले लिया है, टी की जो बुशेज में जो झाड़ियां हैं उन्होंने. टी बुशेज स्प्रेड, और जो टी की जो झाड़ियां हैं, टी के जो प्लांट हैं स्प्रेड, वो फैले हुए हैं इतनी दूर तक जहाँ तक कि आइज़ जो हैं वो देख सकती हैं. नेक्स्ट इज लीजेंड्स अबाउट डिस्कवरी ऑफ टी.
There are many legends. Legends means a story about the discovery of tea. The Chinese legend says that when a few tea leaves accidentally fell into boiling water, which the emperor tasted and liked, and tea making started. Next one is Indian legend. Indian legend tells that a Buddhist monk cut off his eyelids because he fell sleepy during meditations. 10 tea plants grew out of these eyelids. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, drove away sleep. There are many legends. This point is very important, so you have to listen very carefully. There are many legends, जो काफ़ी जो कहावतें हैं, जो स्टोरीज़ हैं अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी की खोज के प्रति वो काफ़ी हैं. द चाइनीज़, जो फर्स्ट जो लीजेंड है चाइनीज़ लीजेंड सेज, चाइनीज़ जो लीजेंड है बताती है दैट व्हेन अ फ्यू टी लीव्स, कि जब एक बार कुछ जो टी की जो लीव्स थी एक्सीडेंटली वो अचानक से फेल इनटू बॉइलिंग वाटर में गिर जाती है. विच द एम्परर टेस्टेड, जिसे जो एम्परर है, जो चाइनीज़ जो एम्परर था, उसने उसे टेस्ट किया और यह उसे पसंद आई और तभी से ही जो टी है वो बनना स्टार्ट हुई. नेक्स्ट वन इज़ इंडियन लीजेंड. इंडियन लीजेंड जो है वो बताती है कि एक बौद्धिस्ट जो मोंक हुआ करते थे, उन्होंने अपनी जो आईलिड्स में जो पलकें थी उन्हें काट दिया बिकॉज, क्योंकि ही फेल स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस, क्योंकि जब भी वो मेडिटेशन करते थे तो उन्हें नींद आ जाती थी, वो सो जाते थे. 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ दीज आईलिड्स, और इन्हीं आईलिड्स की वजह से जो 10 टी के जो प्लांट्स थे वो ग्रू आउट हुए. द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, इन प्लांट्स की जो लीव्स थी, व्हेन पुट इन हॉट वाटर, जब उन्हें हॉट वाटर में डाला गया और पिया गया, ड्रोव अवे स्लीप, तो इसने जो नींद है उसे भगा दिया. मीन्स इसको पीने के बाद उन्हें नींद नहीं आई. नेक्स्ट इज चाइनीज द टी लवर्स. राजवीर टोल्ड प्रांजोल दैट tea was first drunk in China. Words like chai and chini. राजवीर ने बताया प्रांजोल को कि जो टी है वो सबसे पहले चाइना में पी गई. जो वर्ड्स हैं चाय और चीनी वो कहाँ से लिए गए हैं? चाइनीज़ से. फ्रॉम चाइना इट स्प्रेड टू यूरोप एंड देन टू एशिया. और फिर चाइना से यह यूरोप गया और वहाँ से एशिया. अर्लियर टी वॉज ड्रंक मोर एज अ मेडिसिन देन एज अ बेवरेज. और पहले जो टी थी वो पी जाती थी एज ए मेडिसिन के रूप में बजाय के बेवरेज के रूप में. नेक्स्ट इज डकियाबरी. डकियाबरी, द बॉयज़ अलाइटेड एट मैरियानी जंक्शन. जो बॉयज़ थे वो पहुँचे मैरियानी जंक्शन पर. सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स डकियाबरी. जैसे ही वो डकियाबरी से जा रहे थे, द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजोल्स फादर. वहाँ पर जो टी गार्डन था जो कि किसके द्वारा मैनेज किया गया था? प्रांजोल के फादर के द्वारा. ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, वहाँ पर जो टी की जो लीव्स हैं उनको तोड़ने वाले जो प्लकर्स थे, जो व्यक्ति थे, विद बैम्बो बास्केट, उनके पास बांस की एक बास्केट थी जो उनके बैक पर थी. एंड वियरिंग, और उन्होंने प्लास्टिक एप्रन्स डाले हुए थे. प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, वो तोड़ रहे थे जो नई जो लीव्स थी उन्हें. कुड बी सीन एवरीवेयर, जो कि हर जगह देख सकते थे. द बेस्ट टी इज़ ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मई टू जुलाई.
जो बेस्ट टी है वो कब पी जाती है? मई टू जुलाई, सॉरी, जो बेस्ट टी है वो कब प्राप्त की जाती है? मई टू जुलाई. Now I am telling you some sentences which highlights this chapter. First, Pranjal and Rajveer were visiting Assam by train. Second, Rajveer was busy looking at the beautiful scenery outside the train. Next, it was green everywhere as far as I could see. Next, the soft green paddy bushes gave way to tea bushes. Next, Assam has the largest concentration of tea plantation in the world. Next, the Chinese are said to have discovered tea. Next one in, there is also an Indian legend saying that Bodhidharma discovered tea. Next, from China, tea came to the European countries and then to Asian countries. Next, Pranjol's father managed Dakiabari, a tea garden. There were many tea pluckers around the tea bushes. The best tea is obtained between May to July. So now students, I hope you must have understood this part of chapter Glimpses of India. So students, thank you so much.